Thank you, Dipti. Okay, so amazing. फर्स्ट ऑफ ऑल शिवाजी जयंती की, शिवाजी महाराज जयंती की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो, रेडी? गिव मी द डबल थम्स अप. लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन. Let me ask with a question. So this is an amazing cohort of growth driven professionals. जो हमारा आज का जो ग्रुप है, Rise Up 7 Days Challenge का, all are growth driven. Some or the other way they have attempted the mindset assessment test, and after qualifying, going through that test, they are now you have joined that 7 Days Challenge. Okay, so with that note, amazing platform, amazing cohort of driven professionals. Let me ask you a question. How many of you want to contribute in building a successful India? Do you think you're contributing? If you think that you're already contributing in building a successful India, raise your hand. Amazing. How many of you want to have a successful personal as well as professional life? I think each one of us wants to have a very successful, personal and professional life. That's amazing. So with that note, let us have a quick understanding about the agenda of today's session. इंडक्शन सेशन हमने इसलिए रखा था, आपने सोचा होगा यार संडे को तो हमको छोड़ देते। संडे को हमने इसलिए रखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट ईच अदर, गेट टू नो ईच अदर, है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पायल, आप बताइए कहाँ से हैं? जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन। आप कहाँ से और आप क्या करते हैं? Yes, ma'am. I am a small town village named Balrangdan in Karnal, and I am a student of Masters of Literature. Amazing. Okay. Yes, welcome, Payal. Let us move on to Megha. मेघा, आप कहाँ से हैं? बताइए आप क्या करते हैं? मेघा, you are there? Till that. हाँ जी. Yes, मेघा, please go ahead. बताइए. हाँ, मैं मेघा मेहरोत्रा और मैं बैंगलोर से बिलोंग करती हूँ। मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ। Amazing. Okay, great. Welcome, Megha. Pradnya, please introduce yourself. Yeah, hi, I'm Pradnya from Mumbai. I'm actually from legal field. I work as in the legal field, but now I have developed a passion in coaching. So looking forward to it. Yes. So we work hand in hand with the counselors who are expert in legal things also, especially with the couples who are going through premarital counseling. And so we work hand in hand. Thank you for sharing that, Pradnya. Welcome. Okay. And I will also introduce, I want to introduce Coach Dipti, Coach Deepak. They are part of the maternal health coach community. Dr. Renu is also part of maternal health coach community. So during this course of time of the 7 days challenge, these people will be reviewing your challenges. Okay. So we have more people in the community who will be joining. As part of the challenge also. They are part of the group. Okay. So आप जो challenge के responses डालेंगे, they will also go through the responses, your participation, and they will also help you if you come across any difficulty, any, challenge, any query, any doubt during the course of time. Okay. Chalo. With that note, let us start today's session. All ready? So हमने क्या बोला था कि 7 दिन में आपको कुछ चैलेंजेस देंगे। तो चैलेंजेस के पीछे का एजेंडा क्या है ना, क्या उसके पीछे थॉट प्रोसेस है। So every challenge is designed in such a way that it has 2 messages. One is a direct message where you learn from the message. आप जब खुद करते हैं। So पायल बताइए, आज का चैलेंज आपने किया, बहुत अच्छा किया। I think you were one of the first or second participant who completed the challenge, right, Payal? How was it and what is your learning from today's challenge? Today, ma'am, I analyze myself in different fields, how much score I gain.
I enjoy a lot. It's the Right. different to see my growth. It's the Amazing. first. I would love to know who is POCOX2. If you can rename yourself and if you can come on video so that we can interact with you. POCOX2. Okay. Till that time, great. Thank you for sharing that, Payal. So जो हर एक चैलेंज जो बनाया हुआ है ना, उसके पीछे एक लर्निंग है, एक डायरेक्ट लर्निंग, एक इनडायरेक्ट लर्निंग है. उसके साथ साथ में एवरी चैलेंज लीड्स टू द अदर. इट्स लाइक अ स्टेपिंग स्टोन फॉर द अदर चैलेंज. ओके. सो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपका लर्निंग भी बढ़ता जाएगा और हर एक चैलेंज आपको इट विल ओपन द डोर्स फॉर द अपकमिंग चैलेंज. ओके. इतना क्लियर हो गया. उसके बाद हम अभी जाते हैं वाई वी आर डूइंग दिस चैलेंज. आपके सबके दिमाग में ये आया होगा, ये तो डॉक्टर है और डॉक्टर तो जनरली पेशेंट्स देखते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये क्या नया शुरू कर दिया, क्यों इन्होंने ऐसे ग्रुप बनाया है, what is the purpose of doing this 7 days challenge, what is the purpose of bringing all the health professionals, parenting coaches, educators and trainers in the area of mother and child health, mental health professionals, इनको सभी को एक प्लेटफॉर्म पे क्यों लाया है, ये दिमाग में आया होगा. राइट मेघा? सो इसके पीछे एक पर्पस है. लेट मी स्टार्ट विद अ स्टोरी. So what happened is, how it started, why we created basically why of this maternal health coach community. हम क्यों कोचेस के साथ में काम करते हैं और कैसे साथ में काम करते हैं और कैसे एक दूसरे को एम्पावर करते हैं अपनी अपनी प्रैक्टिस में, अपनी अपने क्लिनिक में, अपने अपने सेटअप में ग्रो करने के लिए, अपना अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए हम कैसे हेल्प करते हैं वो भी मैं बताऊंगी. सो वाई जो शुरू होता है मेरी खुद की मम्मी की स्टोरी. So, when I was in job, when I started doing my job, graduation हो गया, सब हम लोग जॉब करते हैं. MBBS होने के बाद में मैंने एक जगह पे जॉब किया और आप मानेंगे नहीं, वो मेरा जो जॉब था वहां पे इनफैक्ट उस हॉस्पिटल में मेरा जन्म भी हुआ था. ओके. सो लकीली जिस हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ था उस हॉस्पिटल में मुझे काम करने का मौका भी मिला, पहला जॉब मेरा. सो उसमें क्या हुआ कि मेरी मम्मी और पापा मुझे टिफिन देने आते थे शाम को, बिकॉज इट्स माय नेटिव जहाँ पे मुझे जॉब मिली थी. सो मम्मी आई थी मुझे इवनिंग में टिफिन देने के लिए, 24 आवर्स का ड्यूटी था. और मम्मी ने एक लेडी को आते हुए देखा, वो हमारी हॉस्पिटल की स्टाफ थी, माउशी जिसको बोलते हैं, आया. मम्मी ने बोला ये मेरी डिलीवरी के टाइम पे थी, मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारी थी थाई पे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शाउट कर रही थी डिलीवरी के वक्त में. So when my mother was giving birth to me in that labor room, she remembered that lady, that she is the one who was there during her childbirth when I was coming into this world. And I was shocked that जिनके साथ मैं काम करती हूँ उस लेडी ने कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस मेरी मम्मा को दिया है. तो that was really painful, कि आप एक मदर at the age of 50-55 आप अपनी डिलीवरी को याद रख सकते हो, अपने चाइल्ड बर्थ प्रोसेस को आप हमेशा के लिए याद रखते हो. मुझे तब रियलाइज हुआ कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, पोस्टपार्टम, ये ऐसी मेमोरीज हैं, दे आर गोइंग टू बी एवर लास्टिंग. आप मानते हो मेघा, आप पेरेंटिंग कोच हो, ये मेमोरीज एवर लास्टिंग है. हम में से सभी, ऑलमोस्ट सभी मदर्स है, कोच दीपक फादर है, हम वो मेमोरीज हमेशा याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं है. दे आर गोइंग टू स्टे विद अस फॉर एवर. आप अपनी दादी से पूछिए, अपने इन-लॉज से पूछिए, उनको हर एक चीज याद रहेगी. ये एक इंसिडेंस था जब मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार यहाँ पे कहीं तो मुझे सही नहीं लग रहा है. देन आई went ahead, I got married and then I did my MD after my marriage, and that time what happened is I was working in a mother and child healthcare setup. One mother came in the hospital crying. OPD में बहुत heavy OPD चल रहा था, करीब 200 का OPD था, बहुत heavy OPD था. Luckily मुझे पूरे अपने लाइफ में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैंने मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में ही काम किया है, OPD में ही काम किया है ज्यादातर. तो वहां पे एक मदर आई, उसका बच्चा 2 months का था और चेहरे पे रो रही थी, बच्चा भी रो रहा है. कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि इसको जल्दी लेना चाहिए, तो मैंने बोला कि इसको जल्दी अंदर ले लीजिए.
तो हमने उसको अंदर लिया, मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, बोले मुझे बहुत ब्रेस्ट फीडिंग में पेन हो रहा है, मैं दूध नहीं पिला पा रही हूँ बच्चे को। मैंने बोला क्यों नहीं पिला पा रहे, तो बोले कि क्रैक्स हो गई है निप्पल में। तो मैंने ऑब्वियसली उसको एग्जामिनेशन रूम में लेकर गई और उसको मैंने चेकअप किया। तो मुझे लगा कि इसको सही काउंसलिंग की जरूरत है, लैचिंग में हेल्प की जरूरत है, उसको प्रॉपर एक टाइम की जरूरत है। बट उसी टाइम पे मुझे सुनाई दिया मेरे पीछे मेरी जो कंसल्टेंट है, स्मिता तुम क्या कर रही हो, ये हमारा काम नहीं है, हम डिलीवर कर चुके हैं, उसको पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में भेजो। ओके, तो जब मेरी सीनियर कंसल्टेंट ने मुझे ये बोला तो मैं डर गई। ऑब्वियसली आप जूनियर होते हो, आपको अपनी जॉब की भी फिक्र होती है। सो आई सेंट हर टू, इन स्पाइट ऑफ हैविंग दैट मतलब immense urge to help her, to counsel her, to educate her in that process, but I could not do it. I had to send her to pediatric OPD. Pediatrician said अभी बहुत लेट हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अभी हमारे हाथ से केस चली गई है, इसको लैक्टेशन कंसल्टेंट के पास भेजो। हमारे यहाँ पे लैक्टेशन कंसल्टेंट नहीं थी। हो गया, वो मदर यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां सिर्फ घूम रही है, बच्चा रो रहा है, मारो। Do you feel, how do you feel when you listen to this story? Do you feel the gaps are there? Yes, right? Pradna, what do you think? Do you think Absolutely. the gaps are there? Yes, even That I is- have experienced this twice. I have two daughters, and as you said, both the childbirths are exactly मतलब A to Z पूरा याद आता है, मतलब picture आता है, Exactly. and Thank you. gaps भी समझ में आते हैं, gaps are there. Right. Thank you, Pradnya, for sharing that. So that was the second why we started this. Then obviously, my pregnancy experience, my first pregnancy experience, what I realized is a working mother, when she works in particular as working setup, she has to go through many challenges, if your staff, your colleagues are not compassionate, empathetic enough to understand the process. So as I was working in that setup, I realized that in spite of having a great knowledge in the area of mother and child healthcare area, in spite of having a degree in this area, in spite of having experience in this area, if I can go through such experience, what about lakhs and lakhs of mothers out there who are not even aware of this process? That was the process. That is third why we started maternal health coach community. Then obviously my experience of my own childbirth, when I went to that labor room, what I realized is not just me as a mother is struggling to how to cope up with the labor pain, how to cope up with the contraction, how to cope up with the emotions during that process. Not just I'm struggling, I'm helpless as a mother, but that nursing staff, that doctor is also helpless. डॉक्टर के हाथ में भी कुछ चीजें नहीं होती हैं, ये मुझे तब रियलाइज हुआ. डॉक्टर इज लिटरली रनिंग फ्रॉम वन फ्लोर टू अदर. डॉक्टर इज लिटरली रनिंग फ्रॉम ओपीडी to OT, operation theater, then labor room, and then OPD, and then again operation theater, sections, normal delivery, बहुत कुछ चल रहा है. और यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कोई सफर कर रहा है तो वो मदर और वो फादर. That was the why behind why we started maternal health coach community. What I realized is when I hired a coach, when I worked with my coach during my second pregnancy and childbirth, the whole experience was so empowering. The whole experience was so amazing that I literally enjoyed my whole pregnancy and childbirth process and the entire postpartum care. Then I realized, if I can go through such painful experience, and if my mother and my colleagues and my friends can go through such experience who are into healthcare, what about lakhs and lakhs of mothers out there? I left my high paid, stable job, permanent job. आपको पता है डॉक्टर्स को परमानेंट जॉब एक बहुत अच्छी सैलरी देता है, और वो जॉब मैंने छोड़ा. Then I started my own community. Now we are a community of 10 maternal health coaches. We have Coach Deepak also as he plays a very important role in empowering fathers right from the preconception phase till parenting. Coach Deepti is predominantly into mental health and autism parenting.
Coach Renu is part of this batch, ongoing batch. She's Ayurveda and Panchakarma consultant. So yes, this is a community. A few more people are there. Because of prior commitments, they could not join. Okay, sure. So this was the why. I'm sure how many of you could relate with the story? Give me thumbs up. Excellent. Let us move on to the assessment test. वो assessment test हमने किया, क्यों किया था? Mindset assessment. किसी को 140 मार्क्स आए, किसी को 180 आए, किसी को 200 भी आए होंगे. आपने सोचा होगा यार ये तो अजीब ही टेस्ट है, ऐसे तो कभी देखा नहीं हमने. जनरली हमने एक नॉलेज वाला क्वेश्चन आंसर होता है. आप में से ऑलमोस्ट सभी ने माइंडसेट असेसमेंट किया है. हमने जो आपको दिया था ऑलमोस्ट सभी ने किया है, राइट? हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कृति? It was pretty good, ma'am. I really enjoyed the question. Amazing, amazing. So पता है ये जो ग्रुप हमने बनाया है ना, बिफोर गोइंग ऑन टू द माइंडसेट असेसमेंट टेस्ट, ये जो हमने 7 days का ग्रुप बनाया है चैलेंजेस का, इसमें ना पार्टिसिपेंट्स 3 प्रकार के होते हैं. ओके, सो सबसे पहले पार्टिसिपेंट किस प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा? Which are so active, ma'am. हाँ. Second one, they just join but not participate. Okay. Third one, just हाँ. doing for. Wow. Okay. Great answer. Amazing. I'm impressed. Payal. Thank you, ma'am. Amazing. So as Payal said, 3 प्रकार के पार्टिसिपेंट होते हैं. ठीक है, अभी मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आप कौन से प्रकार के पार्टिसिपेंट हैं, आप खुद ही सोचिए कि आप कौन से प्रकार के पार्टिसिपेंट हैं. ठीक है, सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट होते हैं ना, वो प्रिजनर टाइप के पार्टिसिपेंट होते हैं. मतलब आएंगे ग्रुप में और सिर्फ देखते रहेंगे. ठीक है, कि ठीक है, अब एक वो होता है ना कि आपने देखा है वो कुआं होता है, कुएं में एक मेंढक होता है, उसको उतनी ही दुनिया पता होती है, उसके बियॉन्ड क्या चल रहा है, उस वेल के अंदर, उस कुएं के बाहर क्या चल रहा है, उसे कुछ नहीं पता होता है. तो कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो सिर्फ आएंगे और वहां पे रहेंगे, बोलेंगे ठीक है मैं यहाँ से कब निकलूं, इस ग्रुप से मैं कब निकलूं. आज कुछ लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया है ना, तो वो उस तरीके के पार्टिसिपेंट है. आएंगे, थोड़ा देखेंगे और मैं कब यहाँ से निकलूं, बस ग्रुप को छोड़ देंगे. वो प्रिजनर टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट होते हैं. दूसरे टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आएंगे, ऑब्जर्व करेंगे और एंजॉय करेंगे. वैकेशनर्स कैसे और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पायल क्या पार्टिसिपेट कर रही है, कृति कैसे पार्टिसिपेट कर रही है, विशाखा क्या पार्टिसिपेट कर रही है, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. और किसी ने पूछा ना कि कैसा चल रहा है यार, अरे मस्त चल रहा है, मस्त. 7 days चैलेंज में ना मुझे इतना मजा आ रहा है, इतना सीखने को मिल रहा है ना, मैं क्या बताऊं, तूने भी ज्वाइन करना चाहिए था, जा तू भी कर ले, है ना. जब उसको पूछेंगे क्या सीखा, तो बोलेंगे जा तू कर ले ना, मैंने कुछ नहीं सीखा. अंदर से उन्होंने कुछ सीखा नहीं होता है. ओके, सो वैकेशनर्स वो होते हैं जो सिर्फ ऑब्जर्वरशिप कर रहे हैं वहां पे सिर्फ. उसके बाद एक पार्टिसिपेंट होते हैं जो बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट होते हैं, और वो होते हैं लर्नर्स. उनको पता है कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, उन्हें पता है कि गैप्स कहाँ पे हैं, उन्हें पता है कि मुझे कहाँ पे मुझे काम करना है. ओके, सो आइडेंटिफाई गैप, आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे सीखना है, रेडी होते हैं आगे बढ़ने के लिए. इसलिए हमने इस चैलेंज का नाम रखा हुआ है राइज अप. राइज अप मतलब कहीं ना कहीं आप एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन आप अचीव कर चुके हैं, चाहे आप एजुकेशन में हो, एकेडमिक्स में हो, या आप करियर प्रोफेशनल हो, आप एक अचीव कर चुके हो. ओके, अभी आपको एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है, एक नया लीप लेना है. ओके, उस ग्रोथ माइंडसेट के साथ में. ओके, और उस नए हाइट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना जरूरी है, वो अंडरस्टैंडिंग उन लर्नर्स में होता है. ओके, सो आप खुद ही कहीं पे लिखिए कि मैं कौन से पार्टिसिपेंट हूँ. हम पूछेंगे नहीं, आप वैकेशनर्स हो या आप प्रिजनर्स हो या लर्नर्स हो, आप कहीं पे भी हो, आप एक्सेप्ट कीजिए. बट फॉर दिस 7 days, I can assure you that these 7 days will change your life.
These 7 days will transform your life completely. Take my word. Okay. If you participate in each and every challenge, these 7 days will completely transform your life. Each challenge will lead to the other and open doors for many opportunities. This is an amazing cohort of growth driven, purpose driven professionals. ये डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पैशनेट, कंपैशनेट और एम्पैथेटिक लोगों का ग्रुप है. ये कोई ऐसे ही सेल्स और मार्केटिंग का ग्रुप नहीं है. ठीक है, यहाँ पे हमने एक पर्पस से आए हुए हैं साथ में, और इस प्लेटफॉर्म को हम लोग कैसे सीखेंगे इस पे, इस कम्युनिटी के साथ में, वो आप एक्सपीरियंस कीजिए. ओके, सो कहीं पे भी आप हैं, आप प्रिजनर हैं, वैकेशनर से कहीं पे भी हैं, my sincere request to you is come from the prisoner and vacationer mindset to learner mindset for this 7 days. Okay, give me thumbs up, then we will move on to the mindset assessment test. Amazing. Okay, so आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, और उसमें मुझे एक रियलाइज हुआ कि पार्टिसिपेशन तो अच्छा है ही, बट उसी के साथ साथ में जो आंसर्स आप लोगों ने किए हैं, मैंने हर एक का आंसर देखा. ओके, सभी का आंसर देखा मैंने. कुछ पहला क्वेश्चन, मैं अभी यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रही हूँ माइंडसेट असेसमेंट के, हम लोग सभी क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे. एक क्वेश्चन था, पायल, मुझे बताइए आपने क्या आंसर किया इसका. व्हाट आई सी इन द मिरर? Someone who is first one, ma'am. Okay, so thank you for the honest answer, Payal. It takes a lot of courage to accept that. Okay, it takes a lot of courage. I must congratulate you for saying that in front of this whole group. Okay, sure. किसी ने और आंसर लिखा है? Average person, someone managing to the best of his ability, someone contributing in their lives. और कोई आंसर लिखा है किसी ने? कोई शेयर करना चाहेगा उनका आंसर? Krati, what was your answer? Yes, ma'am, the third one, managing to the best of his or her ability. The best of his abilities. Amazing, amazing. Okay, तो पता है क्या, माइंडसेट असेसमेंट का जो ये है पर्पस है, कोई सही या गलत आंसर नहीं है. कोई भी आंसर जो है सही या गलत, तो अगर अरेनु प्लीज म्यूट योरसेल्फ. इसका कोई सही गलत आंसर नहीं है. माइंडसेट असेसमेंट का मतलब है कि आप आज की तारीख में कौन से विचारधारा में हो, कौन से थॉट प्रोसेस में हो, आज का जो भी आपने लाइफ में अचीव किया है अब तक, ऑन द बेसिस ऑफ योर एजुकेशन एक्सपीरियंस, आज की तारीख में आप किस आइडेंटिटी में हो, किस माइंडसेट में हो. वो माइंडसेट आपका ग्रोथ की तरफ जा रहा है या नीचे जा रहा है, डिग्रेड हो रहा है. ओके, सो अगर आप देखेंगे कि इसका आंसर सही क्या है, तो अगर आप सोचे ग्रोथ माइंडसेट, इफ यू रियली वांट टू रीच टू न्यू हाइट्स, इफ यू रियली वांट टू राइज अप टू न्यू हाइट्स, इफ यू रियली वांट टू मेक इट बिग इन लाइफ, कुछ बड़ा करना है यार, मतलब यू नो, इसलिए हमने इस धरती पे जन्म लिया है, कुछ तो बड़ा करके जाते हैं. ऐसा अगर सोच है आज के तारीख में, तो उस माइंडसेट असेसमेंट का सही आंसर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ माइंडसेट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द अदर्स लाइफ. मतलब आपने लाइफ में अचीव कर लिया है, कुछ एक मुकाम हासिल कर लिया है, अभी आप चाहते हैं कि दूसरे भी मुकाम हासिल करें. ओके, दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट. लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the biggest investment so far? What was your answer, Megha? House, career, family, self. Who wants to answer? Anyone else who wants to answer? Career, ma'am, second. Career. Okay. Krati? Ma'am, I chose the fourth one, self. Amazing answer. Amazing answer. So if you invest in self, that is the best investment. That is the best investment. Okay. क्योंकि अगर आपने yes, thank you for your answer, Pradnya. अगर आपने
सेल्फ में इन्वेस्ट किया है ना, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विल कम टू यू, द बेस्ट इन्वेस्ट। और ये आने वाले 7 दिनों में आपको रियलाइजेशन होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप आने वाले चैलेंजेस को अच्छे से पार्टिसिपेट करें, ताकि एक एक चीज का आप लर्निंग ले सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ फॉर अ सक्सेसफुल पर्सन? हु वांट्स टू आंसर? रेणु, Dr. Renu, you want to answer what is the most important quality for a successful person? Is it communication? Is it clarity about the future goals? Is it hunger to achieve? Is it network? Hunger to achieve. Yes, Amazing, amazing. Okay, so इसका मतलब ये नहीं है, पता है, कि बाकी कम्युनिकेशन और क्लैरिटी और नेटवर्किंग सही नहीं है। ये भी आंसर सही है, बट अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है लाइफ में, मेक इट बिग इन लाइफ, इफ यू रियली वांट टू टेक दैट लीप इन योर लाइफ, तो हंगर होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए कि कुछ बड़ा करना है। ओके, दूसरा है माय सर्कल एंड सक्सेस। आपके हिसाब से आपकी फैमिली में किसको पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे सक्सेस मिला हुआ है? वन ऑफ माय पेरेंट्स हैज एक्सपीरियंस सक्सेस इन देयर लाइफ, वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड हैज एक्सपीरियंस सक्सेस इन लाइफ, no one in my family has ever experienced success in my life, and my family and friends circle do not believe in taking risks. कौन सा आंसर था इसका? प्रज्ञा, what was your answer? Actually, I have not appeared this mindset assessment. Okay. I directly. No problem. Okay, but I think will Vishakha- attempt giving answer to this. चलेगा, बताइए। For me, it is hunger to achieve. Yeah. That yes. So we have completed that question now, Pradnya. Next is आपके सर्कल में my circle and success पे अभी हम लोग हैं। Okay. Do you want to attempt this, or anyone else wants to attempt? Anyone, I'll give chance to anyone else to. Yes. Megha, what was your answer? Third My one. circle and success. Third. No one in my family has ever experienced success. Yes. Okay. Thank you for the honest answer. Dr. Yogita, did you attempt this mindset assessment test? Anyone else want to contribute? I think Vishakha ने भी नहीं किया हुआ है. Payal, what was your answer? second one, ma'am. One of One of your- my close friends. yes, okay. ma'am, has experienced success. Yes. So my sincere request to each one of you, surround yourself with the people who have achieved success in their life. बहुत मैटर करता है आपका इनर सर्कल। ओके, और आने वाले सेशंस, आने वाले चैलेंजेस में आपको इसका बहुत ज्यादा अच्छे से क्लोज रियलाइजेशन होगा कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ। ओके, सो इफ यू रियली वांट टू मेक इट बिग इन लाइफ, ऑलवेज सराउंड विद योरसेल्फ विद द and you know, when you are part of this community, when you are part of this amazing platform, you will get to meet many professionals who are into health and mother and child health, parenting coaches, educators, trainers. So जब आप इनके एक साथ में रहेंगे, सीखेंगे, देखेंगे, उनका पार्टिसिपेशन देखेंगे, तो वो रियलाइजेशन पे भी होते रहेगा। The best way to learn about success in personal and professional life is, what do you think, Vishakha? Read the answers. Reading books on successful people, watching YouTube shows on successful people, joining courses and workshops on how to become successful, and overcoming fear and taking action. Fourth one. Amazing. That was the answer. Correct answer. Overcoming fear and taking action. हाँ, ये बहुत सही है। इसका आंसर कौन बताएगा? If I want to spend 50,000 on myself, how would my family react when they come to know about it? Krati? Ma'am, I chose the second one. My family will ask me a lot of questions before allowing me. Okay. हाँ. किसी ने लिखा है they will allow me to spend? No, ma'am. किसी ने भी नहीं लिखा है। दीप्ति, what do you think? इसका आंसर क्या होना चाहिए? They will allow me to spend.
because they trust allow my me. actions. Okay, great. That is the answer. Again, आप सोचेंगे ये कैसा आंसर है यार, 50,000 कैसे कोई फैमिली वाले पूछेंगे नहीं, हमने जब ये कंपनी बनाई हमने जब मैटरनल हेल्थ कोच कम्युनिटी स्टार्ट किया और यूनि शक्ति जो हमारा जब ब्रांड एस्टेब्लिश हो रहा था, हमें एक इन्वेस्टर मिले। जब हमने हमारा रेवेन्यू भी स्टार्ट नहीं किया था, तब उन्होंने हम पे इन्वेस्ट किया। क्यों किया होगा? जब हमारा रेवेन्यू स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर भी हमको इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई बताएगा इसका आंसर? Maybe they were sure about your business model and business plan. हाँ, They trusted Thank you. your Thank you, actions. Pradnya. Thank you, Pradnya, for sharing that. Yes, absolutely. When people surrounding you, your family, your friend, they trust you for your credibility you have created for yourself. इसके पहले अगर आपने उस मनी को कैसे यूज किया है, उस मनी को क्या आपने दूसरों की ग्रोथ के लिए इम्पैक्ट करने के लिए यूज किया है या नहीं? ओके, सो in the past, how you have used that money will bring that trust and credibility from your friends and family. Okay. So the right answer, in order to make it big in life, in order to have that growth mindset, is your family will allow you to spend 50,000, in whichever, because that trust, that belief is there, and how you will use that money to create them. Let us move on to amazing question. Next question. Obviously, हम सब questions नहीं cover कर रहे हैं क्योंकि we have lack of time. So, what is the best strategy? ये बहुत सही question है क्योंकि हम लॉकडाउन से धीरे धीरे निकल रहे हैं। अभी भी बहुत लोग लॉकडाउन में ही हैं क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से खुला नहीं है, हाइब्रिड मॉडल है। So, what is the best strategy for upcoming 2023, considering everything has opened up and people are open working in the hybrid mode? What was the answer? Coach Deepak, what do you think? What is your opinion? What is the best strategy in 2023? Right answer is fourth, but I fill up first one. Yes, take more risk going forward. Take more risks going forward. किसने लिखा है learn from the lockdown? Ma'am, I have written this answer, I think. Yes. So I'm sure healthcare professionals ने बहुत सीखा है. Majority of us are educators, coaches, doctors, healthcare professionals. आप मानते हो क्रांति कि healthcare professionals से lockdown से बहुत सीखा है? क्योंकि हमें फिजिकल सेटअप में काम करने की आदत थी, हमने कभी जूम मीटिंग्स नहीं अटेंड की थी, हमने कभी जूम सेशंस नहीं लिए थे। लॉकडाउन ने सब सिखा दिया। पता है, लॉकडाउन ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज ओपन की कि लोगों की सेकंड या थर्ड फोर्थ इनकम भी शुरू हो गई। और जिन लोग स्ट्रगल किए लॉकडाउन में, सबसे ज्यादा पता है किन लोगों ने स्ट्रगल किया? जो लोगों ने अडाप्ट नहीं हुए थे नए चेंजेस के लिए। सो द राइट आंसर फॉर दिस स्ट्रेटेजी post lockdown is learn from the lockdown. I myself have learned many things from the lockdown. We are proud to say that we have impacted 500 plus mothers during lockdown through our prenatal and postnatal programs online, because that time the mothers were not able to go to the hospital. So we educated them through our programs, paid program and free programs also on Zoom and other various social media platforms. Actual ऐसे one-on-one हम लोगों ने उनके sessions दिए, and the best part is those sessions are still going on, and now we are empowering the health professionals through our program to conduct these sessions online. Okay, so वो एक achiever level से हम लोग contribution level पे भी चले गए. So the correct answer is learn from the lockdown and use those learnings to obviously create impact and create income also, because income is equally important. Amazing question. What is required for rising to the new heights? अगर आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, क्या जरूरी है? Right idea, right opportunity, right people, or right direction? Megha, do you want to answer? Right direction. Amazing answer. Okay. आपके पास कितना भी अच्छा आइडिया हो,
अगर डायरेक्शन नहीं है तो आपको कहीं राह नहीं मिलेगी. आई विल शेयर माई एग्जाम्पल, अ स्टोरी, यू नो. सो व्हेन वी क्रिएटेड, एज आई शेयर्ड, यू नो, डिफरेंट स्टेजेस में मुझे वाई क्लियर होता गया, और जब वाई क्लियर होता गया तो हमारा कम्युनिटी भी बनता गया. सो जब मैंने अपना एक फ्लायर बनाया, एक प्रोग्राम, एक स्ट्रक्चर बनाया, सो ऑब्वियसली आप जब अपना कुछ बनाते हैं और तो किसके पास जाते हैं, है ना, किसके पास जाते हैं? पायल, आप अगर अपना खुद एक आइडिया, बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आता है, तो वो जस्टिफाई करने के लिए, या फिर और अच्छा करने के लिए, या फिर उसको लोगों तक लेके जाने के लिए आप किसके पास जाते हैं सबसे पहले? Who give me direction, right direction? हाँ, किसके पास जाते हैं आप? मैम, मेरी हर एक फील्ड में, जैसे कि मुझे करियर के बारे में कुछ जानना है तो मैं अपने जैसे सीनियर है उनसे पूछूंगी. अगर किचन के बारे में कुछ जानना है तो मम्मी से या फिर दीदी से, उनसे जानूंगी. अलग अलग पर्सन. Right, right. Amazing. Very honest answer. So when we created this framework and the structure for the prenatal program, जो हम चाहते थे कि हमारी मदर्स के लिए करें, राइट फ्रॉम द फर्टिलिटी से लेकर तो पेरेंटिंग तक, हम लोग जब पोस्ट चाइल्ड बर्थ तक हम लोगों ने प्रोग्राम्स डिजाइन किए. और मैं ऑब्वियसली मेरे सीनियर प्रोफेसर के पास गई थी, तब मेरा जस्ट एमडी खत्म हुआ था. सो मैं गई मेरे सीनियर प्रोफेसर के पास कि मैम मुझे हेल्प कीजिए, यू नो, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स में मुझे लेके जाना है ये प्रोग्राम, आप मुझे हेल्प कीजिए. उन्होंने मुझे बोला ये नहीं चलेगा, ये इंडिया है, यहाँ पे ये सब चीजें नहीं चलती है, यू नो. ऑब्वियसली डिस्करेजमेंट हुआ होगा, राइट. मैं किस लिए गई थी और मुझे क्या मिला? ठीक है, बट मैंने वहां पे हार नहीं मानी. मुझे एक सही टाइम पे एक मेंटोर मिल गए, मेरे कोच मिल गए, जिन्होंने मुझे प्रॉपर मेंटरशिप दी, प्रॉपर हैंड होल्डिंग किया. और उसमें ना मेरा काफी टाइम चला गया, ऑलमोस्ट 6-7 साल मैं अपने आइडियाज पे काम करती रही, गिरती पड़ती रही, फेल्यूर्स आए, अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत चैलेंजेस आए. और एक मुकाम पे जाने के लिए आते तक, इस प्रोग्राम को सही दिशा पहुंचाते तक बहुत टाइम लग गया. ओके. और मुझे रियलाइज हुआ कि एक सही डायरेक्शन कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी है. वो तब रियलाइज हुआ जब मुझे मेरे प्रॉपर एक कोच मिले, एक मेंटोर मिले, जिन्होंने मुझे बताया कि क्या नहीं करना है. ओके. मेंटोर का वो ही एक काम होता है कि आपको हैंड होल्डिंग देना, सही राह दिखाना, सही डायरेक्शन दिखाना, और क्या करना है से ज्यादा क्या नहीं करना है वो. ओके. सही डायरेक्शन, right direction is the right answer. Last question. What would you do when you have reached to the new heights in your life? क्या करोगे आप, क्रांति, जब आप एक मुकाम हासिल कर चुके हो, क्या करोगे? रिटायर हो जाओगे, एंजॉय करोगे लाइफ को, ट्रैवल करोगे अक्रॉस द वर्ल्ड, go for more bigger goals in life, help others to make it big? Ma'am, I would like to help others to make it big. Let us clap for Krati. Amazing. Amazing answer. And that is the answer for the right mindset which will take you to new heights, you know. ऐसा काम करो ना कि आखिरी दम तक मजा आए. कुछ तो मतलब अपनी जो सांस है, जो अपनी लाइफ की जो आखिरी सांस है, मरते दम तक ऐसा काम करो कि मजा आए बस लाइफ में. यू नो, सवेरे उठने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि यार अभी मुझे क्या करूं मैं, पूरी मतलब first and foremost when you get up from when you get up from your sleep, express your gratitude to the universe, express your gratitude to the God that thank you for giving me this beautiful day. बहुत लोग तो सुबह भी नहीं देख पाते, हम वो सुबह देख पाते हैं ना. तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, और बाद में अपने आप से पूछिए कि हाउ कैन बी आई एम ऑन द टॉप ऑफ माई गेम. क्या जैसा क्या करूं कि मैं अपने टॉप ऑफ द गेम पे रहूं. ओके. एंड दैट इज द सीक्रेट एंड दैट इज द माइंडसेट यू शुड ऑल हैव, एंड दैट इज कंट्रीब्यूटिंग इन द अदर्स लाइफ. इसमें मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ कि काम. यस, एनीवन वांट्स टू आंसर? कोई कुछ बोल रहा था? ओके. सो ऐसा कुछ कीजिए कि यू नो मजा आए सवेरे उठ के काम करने में, और आखिरी दम तक वो काम करें.
ठीक है, दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट करें। एक लाइन में इसमें बोलती हूँ हमेशा हमारे कोचेस को कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है ना पायल, यहाँ पे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसे, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। ओके, वो मिसाल हमें बनानी है। ओके, चलो, दैट वाज अबाउट द माइंडसेट असेसमेंट टेस्ट। अभी हम जाएंगे आज के चैलेंज के बारे में। आज का चैलेंज कैसे, मजा आया करने में सबको? Who all enjoyed? I always enjoy this challenge, doing today's challenge, because every time I do it, I always tell my coaches to do. I encourage my coaches, even if they have attended in the previous sessions, I encourage them to do this, because every time you do, some or the other way, you have grown in your life. You know, जो अदर एरियाज है, और चारों एरियाज है, चाहे फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ है, आपका करियर है, मनी में आप ग्रो करते हैं, आप एसेट्स में ग्रो करते हैं। ओके, सो समवेयर वी गेट दिस काइंड ऑफ, हमने एक चीज बोली थी वहां पे, बहुत ही पावरफुल चीज बोली थी कि आप अपने अलग अलग एरियाज को इस तरीके से शेड कीजिए, राइट? सो किसी ने शेड किया, किसी ने लाइन बनाई, किसी ने नंबर लिखे, किसी ने डॉट 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 बनाए, सभी ने अपनी अपनी तरीके से बेस्ट दिया। ओके, सो कोई मुझे बताएगा, विशाखा आपने अटेम्प्ट किया है इसको? आप शायद लेट ज्वाइन हुए ना? यूर ऑन म्यूट विशाखा। किया है आपने? हाँ, तो मुझे बताइए, व्हाट वाज योर डायरेक्ट लर्निंग फ्रॉम द मैसेज? मैंने बोला था ना कि हर चैलेंज के पीछे एक डायरेक्ट लर्निंग है और एक इनडायरेक्ट लर्निंग। वो इक्वल नहीं हुआ मेरा, हर एक कंप्लीशन नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं किया आपने? ओके, मतलब इक्वल नहीं हुआ हर जगह पे, कहीं पे तीन लाइन कवर किया, कभी कहीं 4 लाइन कवर किया, कभी 5। ओके, सो मुझे बताइए ना, क्या सीखा आपने उससे? दैट वाज द लर्निंग फॉर यू? इट शुड बी कंप्लीट। इट शुड बी कंप्लीट, ओके। अभी आप ये बोल रहे हैं कि ये जो है, अगर ये जो है, मतलब फिजिकल हेल्थ और आपका जो ग्रोथ है करियर का, और एसेट है, मनी है, ये जो सभी चीजें है, वेल्थ है, ये एक लाइन में आना चाहिए, मतलब एक सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, राइट? ये कम ज्यादा ना होते हुए ये सारे के सारे मतलब एस्पेक्ट से वो एक लाइन में होने चाहिए। ओके, वो दैट इज योर लर्निंग। ओके, anyone else wants to attempt? What is your direct learning, Megha, from this circle of growth? इसमें बस ये देखा कि जो हमारे वीक पॉइंट्स है ना, उन पे काम करने की जरूरत है। ओके ओके ओके, जो काफी है। great answer, Megha. Yes, thank you for sharing that, Megha and Vishaka. Pradna, you can share your learning. Similarly, what she said just now, even where we stand today, उसका पता चलता है। Right. क्योंकि हमको ये हम लोग एजुकेशन में एक अचीव कर चुके हैं मुकाम, एकेडमिक्स हो चुका है, जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिस चला रहे हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं हमें आगे जाना है। ओके, एक तो करंट लाइफ है, और उस करंट लाइफ को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम सभी एक ग्रुप में क्यों ज्वाइन हुए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस ग्रोथ माइंडसेट में हैं, इस पे यहाँ पे रुकना नहीं चाहते, और ऊपर जाना चाहते हैं, और ऊपर जाना चाहते हैं, और आगे जाना चाहते हैं, ताकि इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, लोगों की लाइफ में बदलाव ला सके। इसलिए हमने ये ग्रुप ज्वाइन किया, ठीक है? सो इसके पीछे डायरेक्ट लर्निंग ये है कि इफ यू रियली वांट टू मेक इट बिग इन लाइफ, इफ यू रियली वांट टू राइज टू न्यू हाइट्स इन योर लाइफ, अगर आपको से फॉर एग्जाम्पल ऊंचाई का मैंने आज के वीडियो में एग्जाम्पल दिया है कि आपको ऊंचाई हासिल करनी है ना, ऊपर चढ़ना है, तो आपने वो मूवी देखी है ऊंचाई? 4 फ्रेंड्स जाते हैं, 3 फ्रेंड्स जाते हैं एवरेस्ट बेस कैंप पे। किसने देखी है ऊंचाई मूवी? देखिए वो मूवी, देखिए, बहुत पावरफुल मूवी है, सब जाके देखिए, पता है? सो तीनों फ्रेंड्स जब जाते हैं, सबसे पहले वो क्या सोचते हैं पता है? कि अभी अगर हमको जाना है एवरेस्ट पे, तो आज की तारीख में मेरी हेल्थ क्या है, मेरी वेल्थ क्या है, मेरा करियर क्या है, मैं क्या हूं अभी, वो सबसे पहले सोचते हैं। सो करंट लाइफ में वो कहाँ है,
चारों मेजर एरियाज में वो सबसे पहले सोचते हैं और बाद में फिर ऊंचाई हासिल करते हैं, और वो करते भी हैं, ऊंचाई हासिल करते हैं। ओके, सेम तरीके से अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, राइज अप करना है, एक नया लीप लेना है, तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि मैं मेरे फिजिकल हेल्थ में कहाँ पे हूँ, इमोशनल हेल्थ में कहाँ पे हूँ, मनी में कहाँ पे हूँ, एसेट्स मेरे पास कितने हैं, करियर में मैं कहाँ पे हूँ, ओके, फिटनेस में कहाँ पे हूँ। ये सब चीजें ये ग्रोथ आपको बताता है। हम जब छोटे थे, है ना, हम छोटे थे तो हमारी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी? हमारे खाने पीने की, हमारे फिजिकल हेल्थ की, हमारे इमोशनल हेल्थ की किसकी होती थी प्रज्ञा? पेरेंट्स। पेरेंट्स की, है ना। वो कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी लेते थे हमारे हेल्थ की, हमारे पढ़ाई की। जब हम बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, वो अकाउंटेबिलिटी किसने ली? टीचर्स ने, है ना। वो अकाउंटेबिलिटी टीचर्स ने ली। हमारा होमवर्क, हमारी एग्जाम, हमारा ग्रोथ हो रहा है यानी वो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और कुछ तो टीचर्स इतने अच्छे थे कि वो कंप्लीट एक चार्ज लेते थे उस बच्चे की ग्रोथ का, कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी लेते थे। पर जब हम बड़े हो गए, प्रोफेशनल कॉलेज में गए, जॉब की, शादी हो गई, बच्चे हो गए, एक मुकाम यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम रुक गए हैं। यहाँ पे हम क्यों रुक गए पता है? यहाँ पे हमारा अकाउंटेबिलिटी, हमारा हैंड होल्डिंग करने के लिए हमें सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। एंड दैट इज वेयर वी आर स्टक हियर। ओके, सो दिस चैलेंज हेल्प्स यू टू इंट्रोस्पेक्ट, थिंक अबाउट योरसेल्फ। भागो आगे पर थोड़ा रुको कि अभी कहाँ पे हो, बाद में ऊपर भागो, बाद में ऊपर चढ़ो। पहले सोचो तो कि आप कहाँ पे हो, फाउंडेशन तो बनाओ। दैट is the direct message of this challenge, that where you are right now. Okay, अब इनडायरेक्ट मैसेज है। जैसे बोला, किसने बोला था कि वो एक लाइन में नहीं आया? विशाखा ने बोला था। अभी अगर हम इसको कट करें, ठीक है, तो ऑब्वियसली सभी का एक लाइन में आना नहीं है। किसी का नेटवर्किंग अच्छा है, किसी की स्किल्स अच्छी है, किसी का एसेट बहुत ही कम है, किसी का करियर ग्रोथ अच्छा है बट फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, किसी का फिजिकल हेल्थ अच्छा है तो इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, बहुत इमोशनल है हो जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस है। तो इम्बैलेंस को कैसे देखेंगे? इस व्हील को अगर हम फोल्ड करते हैं, ओके, इस तरीके से, तो वो इम्बैलेंस आपको समझ में आएगा। ओके, ये जो इम्बैलेंस कब समझ में आएगा? जब आप व्हील को फोल्ड करोगे। अब ये व्हील को आप चलाने जाओगे ना, ये चलेगा नहीं। ये जो व्हील है ये कंप्लीट इम्बैलेंस है। इसको जब आप रोड पे चलाने जाओगे, इस व्हील को, डू यू थिंक इट विल रन? डू यू थिंक दिस व्हील विल वॉक ऑन द रोड or any path? Did you get the indirect message? Yes. Because all these areas are in imbalance. They are completely complete disalignment of all the major areas of your life. Emotional health कहीं जा रहा है, physical health तो है ही नहीं, और हम बोल रहे हैं कि मुझे ऊंचाई हासिल करनी। अगर ऊंचाई हासिल करनी है तो इसको ट्रैक पे लाना पड़ेगा, इसको सही चलाए। ये व्हील जब सही चलेगा तो आप चलेंगे। ये व्हील अगर गड़बड़ है ना तो आप नहीं चल जाएंगे। दैट इज द इनडायरेक्ट मैसेज ऑफ दिस challenge. And the upcoming challenge will again open the doors for many learnings in your professional life and the personal life as well. आपको पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ होने में हेल्प होगी, क्योंकि आपने देखा ना, यहाँ पे हमने फैमिली के बारे में भी बात की थी, यहाँ पे हमने आपके सेल्फ के बारे में भी बात की थी कि आपका सेल्फ के साथ कैसे रिश्ता है। ये सब चीजें जब अलाइन होगी तब जाके आप नई ऊंचाई हासिल कर पाओगे। आप मानते हो पायल इसको? डू यू एग्री विद दैट, दिस कॉन्सेप्ट? Okay, give me double thumbs up if you all are with me. Excellent. Let us take a picture. All put this heart on this screen and एक picture लेते हैं amazing learning के साथ में। Thank you. Okay, so that was the learning, and upcoming challenges will open the doors for the next learning. Best part is
One more learning is there. कोई बताएगा इसमें, इस चैलेंज और इस सातों challenges में और एक learning है, कोई बताएगा? Pradnya, do you want to share? Yeah, about All today's challenge. Yeah, all the challenges, all this 7-day journey. मैंने बोला ना कि way ahead. What is the purpose of doing this 7 days challenge on one platform? इसके पीछे और एक क्या purpose है? कोई बताएगा? दीप्ति, मेघा, yes, मेघा, you want to share? हाँ, इसमें ये है कि हम जो भी एरियाज पे हमें काम करना है ना, किसी की हेल्प लेके आगे बढ़ना है, अपने आप से Okay. नहीं हो रहे हैं, तो मतलब वो हाँ। किसी की हेल्प से हमें आगे बढ़ना होता है। राइट, मतलब एज अ कम्युनिटी हम आपको एक एज अ होस्ट में चैलेंज पोस्ट करती हूँ, एक टाइमलाइन देते हैं, इसी बीच करना है, इसके बियॉन्ड नहीं कर सकते हैं। फिर आपके मेंटोर्स आपको रिव्यू कर रहे हैं, आपकी एक एक चीज को पढ़ रहे हैं और बाद में आपको सजेस्ट भी कर रहे हैं कि आपने क्या किया है और आपको एनकरेज भी कर रहे हैं। आपकी गलतियां कोई नहीं निकाल रहे कि आपने ऐसा किया होता तो अच्छा होता। किसी ने सिर्फ पेंसिल से डॉट्स किए हुए, किसी ने करेक्ट नहीं किया उनको, राइट? So whatever you are doing, each and everyone, every effort is getting appreciated. Okay, your encouragement is there and every effort is getting appreciated. And second thing is you learn from the others. When you see the participation, when you see that how Megha is participating, Payal is getting inspired. When you see that how Pradnya is participating, Vishakha gets inspired. Okay. And when she sees her growth, कि वो wow fitness में कहाँ पे है, मुझे भी वहां जाना चाहिए, wow assets में क्या अचीव किया है यार। डॉक्टर पंकज ने आपने देखा है ऑलमोस्ट 5 उनका है। आज वो ज्वाइन करना चाहते थे, उन्होंने बहुत बार बोला कि मुझे ज्वाइन करना है, बट वो नहीं कर पाए क्योंकि उन इमरजेंसी ड्यूटी है। Genuinely he wanted to attend today's session. These are the people who are there on this group, and we have an amazing opportunity to learn from each other, to get aligned with our learnings with them and understand where we are and learn from others, and also think about how I can मतलब विशाखा ने ये सोचना चाहिए कि कैसे मेरी ग्रोथ से मैं दूसरों को इंस्पायर करूं, है ना? That is the purpose of this group. Yes, with that note, I conclude today's session. I am open for questions and answer. We have 5 more minutes to conclude the session. As commitment, as I committed just before starting the session that this 1 hour is going to be life-changing, I would love to know your feedback about today's session. And if you have any questions, I'm open. Who wants to share? Chalo. How was today's session? आज का session कैसा था? कोई बताएगा? Payal? Yes, ma'am. I want to tell you. Yes, Payal. First of all, I meet to you. It's my good thanks to God. मुझे आपसे मिलवाया और आप मुझे डेफिनेटली हेल्प करोगे मेरे ऑल एरियाज में ग्रो करने के लिए, और मुझे आज खुद के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिला। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल दिस कम्युनिटी मेंबर्स एंड स्पेशल थैंक्स टू डिप्टी मैम स्टेटस वेयर आई गेट द लिंक। Thank you. Amazing. That's the power of, thank you for sharing that honest feedback, Payal. That was really encouraging for all of us. And thank you, Dipti, for bringing Payal on board. This is the power of community. Power of community is amazing. I can talk hours and hours on power of community, and we are creating that, results. And when I see those results, my heart fills with pride every day. Thank you for sharing that, Payal. Anyone else wants to share? Tati? There were good Yes. learnings. Yes. Yes, और वो जो wheel का जो है आपने बताया, that was amazing. That was aha moment for me. If all the sections of life are not aligned, it will not rotate smooth. It will not grow. Yeah, thank you for sharing. Yes. Thank you, Pradnya, for sharing that.
Anyone else wants to share? विशाखा, कैसा लगा सेशन आपको, बताइए. सेशन तो अमेजिंग है और जो इनकम्प्लीट एरियाज है उसमें अगर हम लोग स्टार्ट भी करेंगे जर्नी को तो भी ब्रेकअप खूब बहुत सारे आएंगे. इन बिटवीन हमको कहीं पे रुकना पड़ेगा, कहीं पे स्टॉप ही हो जाएगा, रिपेयर करना पड़ेगा. मतलब ऑल एरियाज ऐसे हम लोग एक्सपीरियंस करते रहेंगे और एक्चुअल जो ग्रोथ का स्पीड होना चाहिए वो मेंटेन नहीं रहता. Absolutely amazing learning, विशाखा. Thank you for sharing that. और आपने जैसे बोला कि रुकावटें आएंगी और हमको आगे बढ़ते रहना है ना. So if you see tomorrow challenge, upcoming challenges, you will see amazing challenges. You will be mind blown. मतलब बहुत ही अमेजिंग चैलेंजेस है. चैलेंजेस इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं आने वाले चैलेंजेस 2nd, 3rd अप टू 7th कि आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ में हेल्प होगी. एंड इट विल ऑल्सो ओपन डोर्स फॉर द 90-minute सेशन विच वी हैव ऑन द लास्ट डे 26th of Feb. Okay, so I invite you all to participate in everyday's challenge and give your best. Okay, at least show up and contribute, share, participate, and learn from others. That is the purpose. Okay. Payal, yes, thank you, Payal. That is the why of our community. Anyone else wants to share? We have completed today's session. And if there are no questions, we can conclude today's session. Thank you, Megha. Thank you for joining. Thank you. Sunday, thank you for joining, all of you. And showing up on Sunday evening is a big thing. और ये वही लोग कर सकते हैं जिनमें कहीं ना कहीं हंगर है, ग्रोथ है, आग है करने की, बड़ा करने की, वही संडे नाइट को यहाँ पे आ सकते हैं. So I congratulate you, each one of you, for showing up, coming up, and supporting each other, encouraging each other, and keep giving your best, and do participate in all the challenges. Good night. Okay, good night, ma'am. Good night. Thank you, Deepti. Thank you, Coach Deepak. Thank you, Coach Pradnya. Good Thank night, you. everybody. Good night. Bye. Thank you, Vishakha. Thank you, Bye. Payal. Let's meet tomorrow morning for Definitely. wonderful session tomorrow, challenge tomorrow. Bye, Krati. Bye. Bye, Dr. Anagha. Bye, Dr. Renu. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am.